ओम श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। विवेक चूड़ामणि में we were discussing verse number 70 तो जहाँ पर गुरु शिष्य को बोल रहे हैं कि पहले कर्तव्य है कि श्रुति को सुनना, ततः श्रुति ही तत्मननम सतत्व। तो जो तत्व है, तत्व क्या है कि अहम ब्रह्मास्मि हो सकता है या सर्वम खल्विदम ब्रह्म हो सकता है। जो महावाक्य है, जो खुद के बारे में और भगवान के बारे में जो कहता है, वेद का वाक्य जो है, उपनिषद का जो वाक्य है, इसके बारे में पहले सुनना है। जो गुरु कहते हैं उसको पहले सुनना है, ठीक से सुनना है। तो फिर सुनने के बाद, समझने के बाद उसका ध्यान करने का कोशिश करना है। तो उसको मनन करना है। वी हैव टू लिसन, वी हैव टू मेडिटेट अपॉन इट, internalize that truth. जो truth Guru says through experience, through realization, उसको we have to internalize it by constantly meditating upon it, by constantly thinking about it, constantly thinking. तो देखिए शंकराचार्य जी कह रहे हैं, तो ध्यानम चिरम नित्य निरंतरम मुने है। ये बहुत important है। नित्यम, every day, without fail it has to be done. Rigorously it has to be done. रोचो रूटीन जैसे हो जाना चाहिए। क्योंकि तो जिसमें मन है उसको हम फिर करते हैं। Whatever we love, whatever we want to achieve in life, so we go on thinking about it, we go on doing it repeatedly. So if we have to be liberated, if we have to get released from the bonds of the senses, from the bonds of our karmas, from all the things that hold us down to this life, then we need to think about it more and more and love something that is going to release us, isn't it? So this is why यहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं कि ध्यानम चिरम नित्य निरंतरम मुने है। मुनि के मतलब मननशील व्यक्ति को मुनि कहते हैं। जो मनन करता है, जो जिसका आदत हो चुका है कि ध्यान करने का, सोचने का, विचार करने का जिसका आदत है, वो मननशील मुनि हो सकता है। Somebody who is thoughtful, somebody who is intelligent to think about, discriminate about his life, his purpose in life. This is what Shankaracharya is saying here. So always one has to be alert. That is why Swamiji used to say, be aware, to be conscious of how your mind works. Unless we are aware of the faults in our minds, our sense perceptions and all this, we will never improve in life. Therefore Shankaracharya says, Dhyanam chiram nitya nirantaram munehe. Nirantaram, continuity. It has to be continuous, it has to be always. ऐसा नहीं है कि आज मैंने ध्यान किया, आज मैंने मेरे तत्व के बारे में, मेरा आत्मा के बारे में सोच लिया, तो फिर कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल छोड़ दिया, तो फिर से शुरुआत किया, तो नहीं होता है। क्योंकि the mind gets strengthened by the repeated action. So if I think repeatedly that I am not the body, I am not the mind, I am not bound by these sense objects and sense pressures and all this, I am somebody who is free, that I am Chinmaya, that I am Nitya, Nirantara, Satchidananda Swarup, then no problem in life can affect me. All these health issues or something, whatever it is, I'll be able to rise beyond everything. Problems will be there, but I will have the capacity, the strength, the discrimination to rise beyond these problems, to be more positive in life. So, this is what Shankaracharya is saying. Unless we have this habit of cultivating this mind, unless जो cultivate करना है मन को, तो
कल्टिवेट करना है। जैसे श्री रामकृष्ण देव एक गाना में कहते थे ना, तो यूज दे हैव यूज एन एग्जाम्पल कि जैसे फार्मर हर दिन उसको खेत को फार्मिंग करता है, तो उसमें जो जो निकलता है मिट्टी वगैरह साफ करता है, तो पत्थर वगैरह निकाल देता है, तो और बीज वपन करता है, तो खाद वगैरह देता है, तो फिर अच्छा से फसल निकलता है ना। तो जैसे फार्मिंग करता है एक फार्मर, वैसे मन को भी कल्टिवेट करना है। तो एक राम प्रसाद का एक बहुत अच्छा गाना है, तो जिसमें वो कहते हैं, तो अरे तो मूढ़ मन, तुमने तो अच्छा से कल्टिवेट नहीं किया, तुम्हारे पास जो था भगवान ने जो तुमको दिया है इस जीवन में, इस मन, इस सब कुछ जो शरीर है, इसको अच्छा से अगर तुम कल्टिवेट कर सकते तो इफ यू हैड directed this mind towards God, you would have got good results, you would have reaped gold out of it. तो वेस्ट कर दिया तुमने करके वहाँ पर राम प्रसाद जी गाते हैं। तो ठाकुर used to like this song, Sri Ramakrishna used to sing this song quite often, he used to appreciate this song. So ततो अविकल्पम परमेत्य विद्वान इहैव निर्वाण सुखम समृच्छति। So यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं, तो अगर if we have this habit of directing our mind, of changing our perception about life, of cultivating our thoughts, of focusing on the self, on the inner truth that is there within us. So then what happens? Ihaiva nirvana sukham samrichati. Here itself, in this very life, in this birth itself, we will be endowed, we will have the pleasure of enjoying that supreme bliss, nirvana sukham. We can be released from the bondages of samsara in this very life itself. जैसे हम देखते हैं बुद्ध हो सकता है, तो so many great saints have achieved it. It is not that it is not possible. We have the examples of great people who have done it. So this highest truth of the self, of the truth within ourselves, that can be realized, certainly realized in this very life. This is the assurance that the Upanishads and Shankaracharya ji gives us. So in the next verse, which also we had read, verse number 71, Sri Shankaracharya says, the Guru in the form of Shankaracharya says, Yad bodhavyam tava idanim atma anatma vivechanam taduchyate maya samyak shrutva atmani avadharya. Listen carefully, avadharya, shrutva. What I am going to tell you, please listen carefully. इसको ध्यान से सुन लो। तो सुनने के बाद क्या करना पड़ेगा? यद बोद्धव्यम तव इदानीम आत्मा अनात्मा विवेचनम। जो तुम्हारा अंदर जो आत्मन है, what about the truth that is there, your reality, इसके बारे में, और जो तुम नहीं हो उसके बारे में। तो मैं क्या नहीं हूँ? What am I not? I am not the body. I am not the mind, I am not the pleasure and pain that afflicts me, which keeps troubling me, which keeps changing me every other day. So there are so many things which are not me, which I don't identify myself. I don't identify myself with the table. I don't identify myself with the glass, but I identify myself with the body. This body is also something which is material, made out of the five objects, earth, water, fire and all these things. But I identify with them and say I am also dying, I am also ill, I am having suffering, I am having this pain, that pain. All this identification which we have with the body, with the mind, with our intellect, with our ego, ahankar, jo nitya parivartit hota hai. Every time there is a lot of change. When I was a boy, I was ignorant. Now, yes, I have some knowledge, I am able to talk, I am able to converse with people, talk to people, I am able to understand people. So my ego, my ahankar, acha, I am so popular, ye, wo, bahut sare badh jata hai. So ego bhi change hota rehta hai. Every day it keeps changing. The more and more you become accustomed with the world, the more and more you are accepted, your ego also bloats up, bubble बढ़ जाता है. तो ऐसे, तो each and every thing that limits us, इसको अतिक्रम करना है, इसको overcome करना है. Anything that binds us down, brings us down, anything that makes us less and less free, we have to get over it. That is true freedom. All of us want freedom. This is what Vedanta says. You want to be free, then be free from your own bondings, your own bindings. जो सेंस
के बारे में. All of us have become slaves to senses, eating this, that, whatever it is. So the senses hold us down. So we are always running behind these pleasures and other things. We are not able to think independently. We are not able to decide independently. That is why Shankaracharya says, now you have to listen, you have to meditate, you have to concentrate upon yourself, your true identity, and then be free in this very life. That is what Shankaracharya says here. So the Guru is trying to teach the disciple, trying to give the right understanding to the disciple. See, all of us have understanding, all of us have goodness in us. There are so many things that are wonderful in us. Only thing, the problem is the direction. Direction is not proper. It gets dissipated. जैसे अगर एक एग्जाम्पल देंगे तो एक नदी बहता है, तो हिमालय से नदी बहता है, आता है नीचे, तो बहुत सारे पानी वगैरह सब कुछ है उसके अंदर, तो लेके आता है, तो फिर जब नीचे उतरता है तो बस इट स्टार्ट्स डाइवर्टिंग इटसेल्फ इनटू सो मेनी ब्रांचेस, यहाँ पर वहाँ पर बहुत सारे चीज़ यहाँ पर वहाँ पर नष्ट हो जाता है. So unless that river is tapped and directed, unless it is utilized for better purposes, कैनाल वगैरह डैम बनकर, नहीं तो पानी नष्ट हो जाता है. तो एक बार समुद्र में चला गया तो बस it becomes salty water, not edible, so difficult to reuse it. So that is how man has started cultivating the river, redirecting it. So all that we need to do is to redirect our thoughts, our intellect into the right channel. तो चैनलाइज करना है, तो जो एनर्जी है, जो थॉट्स है, जो विवेक है, वी यूज इट फॉर रॉन्ग पर्पसेस. तो उसको चैनलाइज करने से क्या हो जाता है, आवर लाइफ बिकम्स बेटर. वी आर एबल टू लीड अ मोर happier life. So that is why Shankaracharya is saying, try to organize your life, try to think, try to be masters of yourselves, try to have a control over your life pattern. क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या प्रायोरिटी है मेरे जीवन में, तो कैसे इसको अचीव करना है, इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा करके शंकराचार्य जी कह रहे हैं. तो यहाँ पर लेट अस गो टू वर्स नंबर 72 फ्रॉम टुडे, फ्रॉम नाउ ऑन. मज्जास्थि मेद पल रक्त चर्म त्वगाह्वयैर्धातुभिरेभिरनित्वम् त्वगाह्वयैर्धातुभिरेभिरन्वितम्. वही लाइन रिपीट कर रहा हूँ. त्वगाह्वयैर्धातुभिरेभिरन्वितम् पादोर्वक्षो भुजपृष्ठमस्तकैः अंगैरुपांगैरुपयुक्तमेतत्. सो यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं, तो इस शरीर में क्या है, तो एनालाइज कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू एनालाइज एंड सी व्हाट इज देयर दैट वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद. जिसके साथ हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मैं हूँ, मैं, ये मेरा है, ये जो भाव जो रहता है, तो इसको एनालाइज कर रहे हैं. तो तुम्हारा शरीर, तुम सोचते हो कि तुम शरीर हो, तो शरीर के अंदर क्या है, तो मज्जा, अस्थि, मेद, पल, रक्त, चर्म, त्वक, ये सब तो है. तुम्हारे शरीर के अंदर क्या है, देयर इज नथिंग बट बोन्स, ब्लड एंड फैट एंड ऑल दीज थिंग्स विच इज देयर इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. हर एक जंतु के अंदर क्या है, तो यही है. तो बॉडी इज मेड अप ऑफ मज्जा, अस्थि, मेद, पल, रक्त, चर्म, त्वक, अह्वयैर् धातुभिः एभिः नित्वम्. ऑल दीज आर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स. जो मिट्टी के अंदर, जो पेड़ के अंदर है, जो सब कुछ के अंदर है, इट हैज टेकन डिफरेंट फॉर्म्स, इट हैज टेकन डिफरेंट शेप्स. ऐसे कुछ स्पेशल नहीं है कि अच्छा ह्यूमन बॉडी के अंदर जो और कोई जंतु के अंदर नहीं है, तो वैसे कुछ स्पेशल तो नहीं है. जो भी है सब कुछ हर एक जंतु के अंदर वही है. तो ये सब के द्वारा यू आर एंडोर्ड विथ ऑल दिस, अन्वितम, यू आर स्ट्रेंथन्ड बाय ऑल दिस. बिकॉज ऑफ ऑल दिस यू आर एबल टू लिव ए लाइफ व्हिच इज much more superior than the animals. A human life is much more superior than an animal life, isn't it? An animal does not have the capacity to think independently.
does not have the capacity to control itself independently like a human being can do, isn't it? We have something called the intellect. There's something called memory which can think about the past, then think about the future, redirect the life, understand life. So human being has, through the process of evolution, through the process of this growing up in the course of thousands of years, we have mastered our body. In one way or the other, we have mastered the body. If you think, revered Ranganathanji Maharaj in the Bhagavad Gita, and in the Vachanam, in this Vivek Chudamani also, he says, you see, the animal is constantly worried about कहाँ पर खाना मिलता है, क्या करना पड़ता है, तो कहाँ पर ढूंढना पड़ता है. It is always afraid. कोई predator आएगा, कोई खा लेगा उसको, नहीं तो मर जाएगा. It is constantly afraid, trying to survive, trying to survive. Survival of the fittest जो रूल है, डार्विन जो बताया, एवोल्यूशन का जो रूल है, तो एनिमल्स आर constantly in that survival of the fittest, whereas the human being is not worried. I am not worried about survival of the fittest. You are not worried about survival of the fittest. We know we are fitter than an animal. We are more worried about how to make money, how to become more popular, how to lead a more happier life, how to buy this, how to buy that, isn't it? We are more worried about something which is different. Then somebody else is worried about something higher in life, maybe a scientist. He is worried about how to make life better on earth, how to solve the problems of humanity. हो सकता है जो पैंडेमिक के बारे में, वायरस के बारे में, trying to find out vaccines for the humanity. So all these scientists are working on something which is higher. There is a lecturer who is trying to work on something higher. He is trying to inspire students, trying to give them more knowledge, trying to share his knowledge. So each of us has a different purpose in life which is much, much higher than the animal life. The animal is constantly worried about living, whereas the human being is not worried about living. He has conquered that aspect. He is worried about how to utilize his time, how to be more creative, how to find satisfaction in life, how to find happiness in life, meaning in life. Most important thing is how to lead a meaningful life, how to be more acceptable in society, how to be happy within and how to be happy with others, how to be able to communicate with others. We have started thinking about all this. An animal would not think about all this. How can I be a better communicator? An animal will not think. An animal will not think, how can I be a better elephant tomorrow? It does not have an individuality. Identity नहीं है. तो जो हम लोगों के अंदर है, मानव के अंदर जो है, अस्तित्व जो है, मैं करके जो भाव है, तो वो तो एनिमल के अंदर नहीं है. This is what makes us independent, to think differently from an animal. We cannot live like an animal. We cannot eat like an animal. We cannot live ordinary life like an animal. We are meant for something higher. What is that higher? God has given us this capacity to reflect, think. Intelligence जो दिया है, memory जो है, बहुत बहुत बड़ा है memory. You see, the animals also have memory. They have greater sense perception than us. And a dog can smell something which is 40 times stronger than our sense of smell. We can't smell like a dog. We can't eat like a pig. We can't eat like something like an elephant, isn't it? They have much more capacity than us. But they don't have a brain which can think, which can memorize, which can remember, which can organize itself, which can think about the future, which can think about the past, which can master itself like a human being. This is a unique contribution that God has given us, a unique, great asset that we have got, a mind, a brain which is far, far superior than an animal's brain. So, but how much do we use? How much do we put to use? Isn't it? So, यहाँ पर all these things, Shankaracharya is saying, you are endowed with all these things. These are all our strengths. The body is our strength. The mind is our strength. The intellect is our strength. इसको utilize करना है. If you don't utilize it, if you don't take care of it, it becomes a burden. It becomes a problem for us. It is not a strength. It becomes a weakness. So those of us who do not discriminate, who do not utilize our mind, our senses, our ego, our intellect for the right purpose, in the right direction, it becomes a problem for
the person and for the society. So यहाँ पर Shankaracharya is saying, you see, Majja, Asthi, Medah, Pala, Rakta, Charma, Tvak, Appaye, Dhatubhihi, Tebhihi, Anvitam. With all these you are endowed, you are strengthened by all these. Pada, Uru, Vaksha, Bhuja, Prishtha, Mastakaihi, Angaihi, Upangaihi, Upayuktam etat. This body has all these parts. You have the legs, you have the thighs, you have the arms, you have the shoulders, you have the back, you have the head. All these different parts. You don't identify yourself with only one particular part. I don't say I am only the leg, I am only the head, I am only the hand. हो सकता है जब when my hand gets burnt in a fire or when I get cut, when I am doing some work, if my hand gets cut, I cry. I feel the pain. I feel I am hurt, but not only with the finger or with the hand, my whole body starts responding, isn't it? So I don't identify with only the hand or the finger and say only this part is me, and if something happens to my leg, that is not me, that is somebody else's part. No. We identify ourselves with the entire body, with all the organs in the body. Most of us identify ourselves with the body rather than with the mind. Mind के अंदर अगर जो फर्क होता है, जो changes होता है, if we can identify, we can change the mind, then that is a higher part. Most of the common people only with body and then the sense pressures and this and that, उतना ही बस काफी है. They don't bother about the mind, about the changes that are happening in the mind. They don't identify themselves with the mind patterns. So unless we identify ourselves with the mind and the intellect and try to change, that is a higher level of evolution. Only if you can identify yourself only with the body, that's very gross. Rise a little higher, go to the level of the mind, the intellect, the emotions, feelings. So each and every part of yourself you will have to reorganize, you will have to change, cultivate, culture karna hai. So samskar dena hai. This is very important here. So Shankaracharya ji is saying, Pada, Uru, Vaksha, Bhuja, Prishtha, Mastakaihi, Angaihi, Upangaihi, Upayuktam etat. This body is endowed with all these parts. Each of us has all this. But unless we utilize all these parts that we have for the betterment of the individual and the society, मेरे लिए, मेरे खुद के लिए, तो क्यों? The purpose of life, as Shankaracharya said earlier, is to find that truth which is within me, and the same truth which is there without me also. बाहर जो भी है, अंदर जो है सत्ता, उसको ही तो पहचानना ये जीवन का लक्ष्य है. तो इसके लिए इसको इस्तेमाल करना है, शरीर को, मन को, बुद्धि को इस्तेमाल करना है कि मेरे अंदर जो सत्य है, आत्मन है, उसको पहचाना है. तो शंकराचार्य जी यही कह रहे हैं यहाँ पर. मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म व त्वचा नामक धातुओं द्वारा जुड़े पांव, जंघे, सीना, हाथ, पीठ, सिर, इन सारे अंगों तथा उपांगों के द्वारा निर्मित और मैं तथा मेरा के रूप में प्रसिद्ध मोह के इस आश्रय को विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं. तो यहाँ पर शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं, तो नेक्स्ट वर्स को भी यहाँ पर ले लिया है उन्होंने. अहम ममेति प्रथितं शरीरम मोहास्पदं स्थूलमितीर्यते बुधैः नभो नभस्वद्दहनाम्बुभूमयः सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि. तो ये जो शरीर है, ये जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है, पाद, ऊरु, वक्ष, भुज, पृष्ठ, मस्तक, ही ये सब जो है, इसके साथ आइडेंटिफिकेशन होता है. तो वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद दिस. तो आपको अगर बुलाया तो बस इमीडिएटली यू टर्न, यू रिस्पॉन्ड, क्योंकि
somebody is calling you, your whole body responds. So somebody hurts you, your whole body responds. So along with the body, the mind, the emotions, everything, the whole body as one unit, they respond, isn't it? तो अहम, ये जो भाव, मैं करके जो भाव है, आई जो है भाव, अहम मम इति, मी एंड मेरा दिस बॉडी, जो कपड़ा, जो चीज़ है मेरा, तो मेरा कार, मेरा मकान, मेरा पैसा, जो भी है, तो आइडेंटिफिकेशन एक्सटेंड्स फ्रॉम दिस बॉडी टू द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। तो सिर्फ मेरा बॉडी तक नहीं, तो ये मेरा कपड़ा आइडेंटिफिकेशन इसके साथ भी चला गया, आ गया ना, तो मेरा मकान उसके साथ भी आ गया। सो एक्सटेंसिफिकेशन ऑफ आवर आइडेंटिफिकेशन, वी एक्सटेंड आवर आइडेंटिफिकेशन इवन टू द ऑब्जेक्ट्स दैट वी हैव, दैट वी पोसेस। तो ये मेरा है, कितना अटैचमेंट होता है इसके बारे में, हाउ मच वी आर क्लिंगिंग ऑन टू द ऑब्जेक्ट्स दैट वी हैव, इजंट इट? तो ये तो हर एक आदमी का होता है। All of us, we are constantly attached to so many things. So if we just analyze, when you go back to your house or whatever it is, if you just sit for a few minutes in your room, कमरे के अंदर थोड़ा बैठिए, दो तीन मिनट बैठिए, तो थोड़ा देख लीजिए कमरे के अंदर क्या क्या वस्तु है, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स रखा है. So how many of them you use regularly, how many of them you don't use or you have not touched it for a long time. बहुत सारी चीज़ रहेगा. ये सेंटिमेंटल इश्यूज हो सकता है. तो अच्छा, तो 10 साल पहले मेरा दोस्त ने बर्थडे में ऐसे दिया था, तो उसको रख दिया, तो कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, तो बस वहाँ पर है. तो सेंटिमेंट है, अटैचमेंट है इसके बारे में. We are unable to give it up. We are unable to think of something which is apart from that. No, we get attached, identify it with that. So ऐसे बहुत सारे चीज़ accumulate करते हैं. We identify ourselves with so many objects. तो जो मेरा जीवन के लिए, सुंदर जीने के लिए जो काफ़ी है, सिर्फ उतना से नहीं. We identify with so many unwanted things also in our life. So यहाँ पर अहम मम इति प्रथितम शरीरम, दिस बॉडी, ये तो बहुत पॉपुलर है. दिस आइडिया इज वेरी पॉपुलर, वेल नोन. क्या? अहम मम, दिस इज मी एंड दिस इज माइन, दिस बॉडी इज माइन. इसको समझाने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर एक के अंदर यही है भाव. ये मेरा है, ये मेरा शरीर है. मैं अलग हूँ, वे अलग है. ये मेरा शरीर है, उनका शरीर अलग है. वो काला है, मैं फर्शा हूँ. मैं धनी हूँ, आई एम रिच, समबडी इज पुअर. मैं इस कास्ट का हूँ, वो उस कास्ट का है. ऑल द डिफरेंसेस इज बिकॉज ऑफ दिस अहम एंड मम. All the separation that we have in this world is because I identify myself with my body, with my caste, with my religion, with my position in society, whatever it is. All identifications have made me separate from others. So जब इसको हटा सकते हैं, मैं और मेरा, यही माया है. उपनिषद कहता है यही माया है. अगर ये चला जाएगा तो सब तो एक हो जाएगा. मैं अलग हूँ, प्रत्येक हूँ इनसे. ये अगर if I am able to give up, if I am able to rise beyond this difference between each one of us, तो पूरा एक हो जाएगा, एक सत्ता हो जाएगा. वही होता है अंत में समाधि में. जब निर्विकल्प समाधि होता है, जब हम भगवान को महसूस करेंगे हर एक के अंदर वही चैतन्य को हम अगर महसूस कर सकते हैं, तो बस वही सब फर्क चला जाता है. कौन क्या है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, सब कुछ चला जाता है. डिस्टिंक्शन चला जाता है. हर एक के अंदर वही चैतन्य को देखेंगे, बाहर भीतर अंदर सब कुछ. तो यहाँ पर अहम मम इति प्रथितम शरीरम, दिस बॉडी एंड द आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी एज मेरा. मोहास्पदम स्थूलमितीर्यते बुधैहि. आइडेंटिफिकेशन दिस ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर जो है, इसको क्या कहते हैं? मोह से होता है. तो ये मोह कैसे आ गया, इसके बारे में समझाएंगे गुरु बाद में. नभो नभस्वत दहनाम्ब भूमयः सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि. तो कैसे हुआ है ये जो शरीर, ये जो ग्रॉस बॉडी जो है, स्थूलमितीर्यते बुधैहि. पीपल ऑफ नॉलेज, पीपल हु हैव
known all this, they say that this is स्थूल शरीर जो है, ग्रॉस बॉडी जो है, ये तो मोह से होता है। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं, तो ये तो जैसे बाहर का जो वस्तु है, दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ सो मेनी ऑब्जेक्ट्स, क्या, स्पेस, विंड, फायर, वाटर, ऑल दीज थिंग्स, 5 एलिमेंट्स जो है, तो इसी के अलग रूप है ये शरीर। दिस ऑब्जेक्ट, दिस टेबल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ समथिंग मटेरियल ऑब्जेक्ट, मेरा शरीर भी वही मटेरियल ऑब्जेक्ट से बना है, तो ये तो कोई फर्क नहीं है। तो यही जो मटेरियल ऑब्जेक्ट, मटेरियल वर्ल्ड को हम महसूस कर रहे हैं, तो वही मटेरियल से बनाया है ये शरीर भी, वैसे ही हुआ है। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं, तो जो करना है, जिसके बारे में सोचना है, पहले तो आत्मा और अनात्मा, मैं क्या हूँ, मेरा रियलिटी क्या है, और what are those things with which I am identified but which is not me, first. Second is, तो शरीर क्या है, इसको समझना चाहिए, शरीर को समझना चाहिए, शरीर के बारे में सोचना चाहिए, मन के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये सब तो अनात्मा है। इफ आई हैव टू डिस्क्रिमिनेट, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, मैं क्या, मेरा अटैचमेंट किसके किसके साथ है, आई शुड नो दोज ऑब्जेक्ट्स टू विच आई एम अटैच्ड, ओनली देन आई कैन गिव अप। तो इसलिए डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, सोचने के लिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड, एनिमी को पहचानना चाहिए पहले। आई मस्ट नो द एनिमी, ओनली देन आई कैन कॉन्कर हिम। विदाउट नोइंग द एनिमी, हाउ डू आई कॉन्कर? क्या है, गलती कहाँ पर है, इसको समझना चाहिए। तो कहाँ पर मेरा अटैचमेंट है, उसको समझना चाहिए, फिर अटैचमेंट को ओवरकम करना चाहिए। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी समझा रहे हैं, तो शरीर की मतलब क्या है, तुम शरीर के बारे में पहले अच्छा से ध्यान से सोच लो, शरीर को समझना चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेनी ऑफ आवर सीनियर साधुस, तो उनसे भी मैं सुना हूँ कि ऐसे तो हर एक को, इफ यू हैव टू राइज बियॉन्ड द बॉडी, यू हैव टू मेडिटेट ऑन द बॉडी ऑल्सो। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई with each part of the body and said, I am not this, I am not the hand, I am not the leg, I am not the skin, I am not the bones, I am not the muscle। ये तो संन्यास के समय भी होता है, वैसे ही उपनिषद में भी है। तो हर एक के बारे में सोचना पड़ेगा कि ये मैं नहीं हूँ। इसलिए शंकराचार्य जी जो नियम बनाया कि आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी इतना स्ट्रांग होता है, अटैचमेंट टू द बॉडी इतना स्ट्रांग हो जाता है, तो इसलिए सन्यास के समय, मैंने आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, ठीक है, तो शंकराचार्य जी ने कहा था, तो यस ही पुट ऑल दिस रूल्स ना, तो हर एक को शेव करना है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन विद दी हेयर, विद माई ब्यूटी, विद माई दिस, यही तो ज़्यादा होता है। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, अच्छा आई एम हैविंग दिस हेयर, आई एम डूइंग दिस, आई एम वेस्टिंग टाइम इन मेकिंग इट क्लीन, कीपिंग इट ब्यूटिफुल, ये सब तो होता है। तो आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी हैपन्स थ्रू ऑल दिस। तो इसलिए शंकराचार्य जी, द संन्यास आइडियल इज सो वंडरफुल कि नो आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी इन एनी फॉर्म, यू हैव टू आइडेंटिफाई ओनली विद योर ट्रू सेल्फ आइडेंटिटी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर अहम मम इति प्रथितम शरीरम, सो अहम मम इति, ये जो अहम जो भाव है, आइडेंटिटी जो है, मेरा जो फीलिंग कि मैं हूँ करके जो फीलिंग है, इसके बारे में अगर थोड़ा सोचेंगे तो देखिए ना, ये भी कितना गलती करते हैं हम। तो दिन भर जो सोच विचार करते हैं, तो यहाँ पर आते हैं, वहाँ पर जाते हैं, ऑल द एक्टिविटीज़ दैट वी डू थ्रू आउट द डे, एक अहम तो है, ठीक है, जिसके बारे में वी आर अवेयर। मैं ये जो शरीर सब कुछ विद अवेयरनेस वी गो अराउंड वेरियस एक्टिविटीज़, यहाँ पर जाता हूँ, वहाँ पर जाता हूँ, आई मीट सो मेनी पीपल, ऑल दिस एक आइडेंटिफिकेशन रहता है मैं करके। जब हम सो जाते हैं तब जो दिन भर रहता है वो आइडेंटिफिकेशन तो नहीं रहता है, तो अलग। तो जब स्वप्न में आप देखते हैं, यू डोंट सी योर ओन सेल्फ एज यू सी इन योर डे टाइम, you see some distinct part of it, some things which is very vague. It may not be the same body that you see also, maybe in a different form, whatever it is, as a child, as a youngster, कोई connection ही नहीं रहता है, तो वो अलग रहता है, identification अलग रहता है। So your aham there changes completely. It is
aham which is controlled completely by your subconscious, unconscious, which is beyond even your control. It does not remain. When you get up, as soon as your sleep is gone, तो फिर change हो जाता है. Your daytime का ego comes back. Night, when you're in your dream, completely अलग ego होता है, अलग identification होता है, सूक्ष्म जो अहम होता है. तो फिर जब डीप स्लीप में हो जाता है तो बस कोई अहम नहीं रहता है वहाँ पर. अवेयरनेस ही नहीं रहता है कि मैं के बारे में तो कोई अवेयरनेस ही नहीं रहता है. You see neither yourself nor others. You have absolutely no perception. So this aham also keeps changing. Every day we go through this. Daytime we have a different aham. Night in sleep we see ourselves as a different person. But still we say, I continue. वही मैं चल रहा हूँ. कल भी वही था, आज भी वही हूँ. Tomorrow also I am the same person. I identify myself with the same individuality, isn't it? जो फिर भी it is changing, but still I say no, I continue. This continuity जो है, इसी को वेदांत कहता है. इसको पकड़ो. जो continuity है, यही है तुम्हारा reality, तुम्हारा true identity. Remove all the external things, फिर जो अंदर में जो कॉमन जो है आइडेंटिटी, उसको मिल जाएगा. तो दिस इज व्हाट शंकराचार्य जी इससे अहम को समझना चाहिए, और क्या मैं नहीं हूं इसको समझना चाहिए. तो वही समझा रहे हैं यहाँ पर. मैं तथा मेरा के रूप में प्रसिद्ध मोह के इस आश्रय को विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं. तो फिर नेक्स्ट लाइन जो है, तो वहां पर आकाश नभः, आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी. नभो नभः, दैट विच इज देयर इन द स्काई. नभो अनभः, so that which is the essence of the sky in the form of wind that we see as moving in the wind. Nabha, nabhasvat, dahana, ambu, bhumayah. So dahana, fire, ambu, water, bhumayah, earth, these 5 elements, the sky, the wind, fire, water and earth, these 5 elements जिसको सूक्ष्म भूत कहते हैं, इसी के कॉम्बिनेशन से हर एक शरीर होता है, हर एक जंतु होता है, हर एक ऑब्जेक्ट होता है. एंड देन फ्रॉम दी सटल एलिमेंट्स, इसी का सूक्ष्म रूप से मन भी होता है, क्योंकि मन भी शरीर के ऊपर निर्भर है. कैसे? तो अगर आप अच्छा से खाना मिल गया तो ज़्यादा खाया, या जो अच्छा चीज़ मिल गया तो खाने से तो आनंद जो मिलता है, तो मन भी प्रफुल्लित हो जाता है, मन भी आनंदित हो जाता है. खाना नहीं मिल रहा है, 2-3 दिन हो गया तो बस एकदम दुर्बल हो जाते हैं, तो मन भी दुर्बल हो जाता है. सो दिस माइंड इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ओनली. इट इज अ सटल फॉर्म ऑफ द ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स दैट वी एंजॉय, थ्रू विच द बॉडी इज मेड. माइंड इज मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल इन अ सटल फॉर्म, सूक्ष्म रूप से. तो इसलिए तो यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं, ये सब आकाश, वायु, अग्नि, पानी, भूमि, इसी के साथ, इसी के कॉम्बिनेशन से शरीर हुआ है और मन भी हुआ है. ये सूक्ष्म पंचभूत है जो एक दूसरे के अंशों से मिलकर स्थूल तथा स्थूल शरीर के गठन का हेतु बनते हैं. तो ये कॉम्बिनेशन, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस है कि वेदांत सार में पंचीकरण करके, तो हर एक चीज से कुछ अंश मिलकर जुड़कर ये शरीर वगैरह बन जाता है. तो किसी के अंदर कोई फर्क जो हम देखते हैं, somebody is able to have a greater sense of smell, greater sense of beauty, whatever it is, all because the different combinations. तो हर एक के अंदर जो पृथक देखते हैं, we see the difference. It is because of the different combinations that we have. Along with this, we have the combination of
the three gunas, sattva, rajas and tamas. So somebody is endowed with more calmness, with more understanding. Somebody is angry, always short-tempered. Somebody is very active, hyperactive जो है, तो बस वो रजस के वजह से हो सकता है. तो combination of these three gunas also, sattva, rajas and tamas, all these things make each of us different from the other. So this is how the person feels that he is different from the other, क्योंकि combination of all these elements, qualities, etc. तो यहाँ पर परस्पर अंशैः मिलितानि भूत्वा स्थूलानि च स्थूल शरीर हेतवः. These are the cause, these objects, the five elements, they are the cause for the sthula sharira. And then, so they again in subtle form cause the mind and other organs of our intellect. Paraspara amshaihi militani bhutva, they combine together. Paraspara milita, so they join with each other to form the human body. So then, matra stadiya vishaya bhavanti shabdadayah pancha sukhaya bhoktuhu. I enjoy the objects in the world. I identify myself with the objects in the world because the same material is there in my senses also. तो वही भूत जो पंचभूत है तो उससे शरीर हुआ है, वही पंचभूत बाहर भी दिखता है, इसलिए तो organ of my eyes, my ears, everything is able to respond and enjoy those objects also in the world. So because it is the same material outside, it is the same material inside in a different form. So they respond to each other. तो connect हो जाता है. तो इसलिए यहाँ पर शंकराचार्य जी कहते हैं तो जो बाहर है वही अंदर भी है. ये तो पूरा नियम जो वेदांत में है कि बाहर जो प्रकृति है, अंदर जो प्रकृति है, ये दोनों एक ही है. तो दोनों को कंट्रोल करना है. अगर तुम मास्टर बनना चाहते हो, इफ यू वांट टू कंट्रोल योर माइंड, इफ यू वांट टू राइज बियॉन्ड योर बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, इफ यू वांट टू रियलाइज गॉड, देन यू हैव टू कंट्रोल एक्सटर्नल नेचर एंड इंटरनल नेचर. दोनों को कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि तुम इन दोनों से अलग हो. यू आर डिफरेंट फ्रॉम बोथ एक्सटर्नल नेचर एंड इंटरनल नेचर. तो बाहर जो दिखता है वही स्थूल वस्तु से शरीर हुआ है, सूक्ष्म रूप से मन वगैरह हुआ है, अहंकार वगैरह हुआ है. तो दोनों को कंट्रोल करना चाहिए, दोनों को अतिक्रम करना चाहिए. यही बात है वेदांत में. तो यहाँ पर शंकराचार्य जी यही कह रहे हैं. तो उनके सूक्ष्म पंचभूत गुण मिलकर भोक्ता जीव के सुख हेतु शब्द आदि स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय बनते हैं. स्थूल सूक्ष्म शरीरों तथा पंच भौतिक विषयों की निंदा फिर नेक्स्ट श्लोक में कर रहे हैं. तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी एंड विद द ऑब्जेक्ट्स होता है क्योंकि दे आर ऑल मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल पंचभूत. तो इसके नेक्स्ट श्लोक में हम जाएंगे. वर्स नंबर 75. प्लीज सी वर्स नंबर 75. य एषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा रागोरुपाशेन सुदुर्दमेन आयान्ति निर्यान्त्यध ऊर्ध्वमुच्चैः स्वकर्मदूतेन जवेन नीता. यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं य एषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा राग उरुपाशेन सुदुर्दमेन आयान्ति निर्यान्ति अध ऊर्ध्वमुच्चैः स्वकर्मदूतेन जवेन नीता. तो यहाँ पर शंकराचार्य जी एक अच्छी बात कह रहे हैं. तो हम सोचते हैं कि हम सब स्वतंत्र है, वी आर ऑल फ्री, वी आर ऑल इंडिपेंडेंट, मेरा विल पावर है, आई एम एबल टू डिसाइड, आई एम एबल टू डू दिस, आई एम एबल टू डू दैट. शंकराचार्य से नहीं, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो क्योंकि यू आर बाउंड टू डू बिकॉज ऑफ योर कर्मास, योर संस्कारास जो है, टेंडेंसी जो हो चुका है, हैबिट्स जो हो चुका है तुम्हारे अंदर बहुत सारे जन्मों से, हो सकता है ना इसी जन्म में जो
आदत हो चुका है तुम्हारा, तो इसी के वश में तुम ऐसे करते हो, ऐसे सोचते हो। तो जो हैबिट्स जो है, टेंडेंसीज जो है, संस्कार जो है, इसको अतिक्रम करना है, इसको समझना चाहिए। तो शंकराचार्य जी कह रहे या एषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा। मूढ़ा कहते हैं जो दोज हु आर आइडेंटिफाइड विद द बॉडी, विद द सेंसेस, इनको शंकराचार्य जी कह रहे हैं मूढ़ा, फूलिश कह रहे हैं। क्यों? तो विषयेषु बद्धा, वी आर बाउंड टू सेंस ऑब्जेक्ट्स, सेंस प्लेजर्स, सेंसेस, एंड देन राग उरुपाशेन सुदुर्दमेन। तो बहुत कठिन है इसको कंट्रोल करना। सुदुर्दमेन क्या? राग उरुपाशेन, पैशंस जो है, तो डिजायर्स जो है, इसको कंट्रोल करना बहुत कठिन है। तो बहुत स्ट्रांग बाइंडिंग होता है, बॉन्डेज होता है। तो इसको तो जो नहीं समझता है, जो इसी में बद्ध रहता है, इसी में आनंद लेता है, उसको शंकराचार्य जी मूढ़ा कह रहे हैं, तो फूलिश कह रहे हैं। क्योंकि ही इज एंजॉइंग ऑल दिस वर्ल्ड एंड गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स इन द वर्ल्ड, thinking that he is doing it independently, but he is completely bound because of the senses and all that. He cannot be otherwise. तो जैसे एग्जाम्पल देते हैं बाद में शंकराचार्य जी एग्जाम्पल देते हैं, तो वी आर एक्चुअली बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे बिकॉज ऐसे संस्कार हो चुका है अंदर, ऐसे कर्म से वश से के अंदर वी डू सर्टन थिंग्स. सो दिस इज द idea that is there in the Vedanta, in Hindu scriptures, कि जीव जो है, आदमी जो है, वो तो कर्म वश है, कर्म के द्वारा ही सब कुछ करता है. तो जो भगवान, जो ईश्वर, जो अवतार पुरुष जो है, तो जो महान पुरुष है, सिद्ध पुरुष जो होते हैं, तो वो क्या है, तो कर्म को अतिक्रम कर लेते हैं, कर्म को दे क्रॉस ओवर. So because of the grace of God, because of their sadhana, because of the realization, when they realize that I am the Atman, or when they realize their identification with the Atman, with the Supreme, क्या होता है, कर्म छूट जाता है. तो all the bondage जो है, कर्म का जो बंधन जो है, वो दग्ध इव हो जाता है. तो as if it is all burnt, ash जैसे हो जाता है. तो कोई बंधन नहीं रहता है इन लोगों को. परंतु जो जीव, साधारण जो जीव है, वो तो कर्म के वश के अंदर ही रहता है. तो आयांति निर्यांति अध ऊर्ध्व उच्चैहि स्वकर्म दूतेन जवेन नीता. यहाँ पर कर्म कैसे करता है? इट एक्ट्स लाइक ए मैसेंजर ऑफ गॉड ऑफ डेथ, यम. तो यम खुद नहीं आता है, तो मैसेंजर को भेज देता है. तो मैसेंजर कौन है? उसका दूत जो है, वो तो कर्म है. तो कर्म क्या करता है? तो it keeps making us play in different ways. तो गुड एक्ट्स, बैड एक्ट्स, अच्छा काम, बुरा काम, पाप, पुण्य, ये सब जो कर्म होता है तो जीवन में, तो ये खींच लेता है हमें कहाँ पर? यम के पास. तो कभी स्वर्ग में ले जाता है, कभी नरक में ले जाता है, कभी अच्छा रखता है, सुख में रहता है, कभी बुरा रखता है. तो ऊर्ध्व उच्चैहि स्वकर्म दूतेन, कभी अच्छा कभी बुरा. तो यही चलता है दुनिया हर एक जीव का, क्योंकि कर्म के वश के अंदर है वो. तो यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे कि हर एक जीव स्वकर्म दूतेन जवेन नीता. वी आर ऑल बाउंड बाय आवर वेरियस एक्ट्स. तो इसलिए पहला काम है, शंकराचार्य जी कहते हैं, निष्काम कर्म से मन को साफ करना है. अच्छा काम जितना हो सकता है तो अच्छा काम करेंगे, बुरा काम नहीं करेंगे, जो निषिद्ध है. जो मना किया है शास्त्र में, समाज में, उसको पहले नहीं करना है. दैट इज द फर्स्ट थिंग, ग्रॉसेस्ट थिंग दैट वी कैन डू. जो बैड है उसको नहीं करना है. तो फिर तो अच्छा काम करते करते मन जितना शुद्ध होता चलेगा, तो फिर काम को अतिक्रम कर सकते हैं. तो जो भी करते हैं हम भगवान को अर्पण करके उसको और भी शुद्ध कर सकते हैं. उसको जो कर्म निकलता है काम से, अच्छा काम से भी एक कर्म निकलता है. जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तो वेदर यू आर बाउंड, वेदर यू आर टाइड डाउन विथ एन आयरन चेन और ए गोल्ड चेन, बोथ आर बॉन्डेज. गोल्ड चेन के अंदर
अगर फंस गया, गोल्ड केज के अंदर फंस गया, वो भी तो बंधन ही है। तो अच्छा का काम जो है, गुड वर्क जो मेरा अहंकार को बढ़ाता है, वो भी एक कर्म ही है, तो उसको भी अतिक्रम करना है। तो यहाँ पर इसलिए तो वेदांत में कहता है, तो भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो भी है कर्म उसको भगवान को अर्पण कर देना। तो मेरा कुछ नहीं है, तो प्रकृति है क्रियमाणानि, कल ही मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्रकृति सब कुछ कर रहा है, भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है, तो मेरा कुछ नहीं है। ये जो भी कर्म है तो सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, मैं अच्छा बुरा जो भी है भगवान को अर्पण कर दिया, तो फिर मैं सिर्फ भगवान का दास हूँ, ये जो भाव है। तो इससे क्या होता है, तो मन शुद्ध हो जाता है। मन जब शुद्ध हो जाता है तो बस जैसे श्री रामकृष्ण कहते हैं, शुद्ध मन के अंदर आत्मा का अनुभूति तुरंत होता है। आत्मा तो वी अंडरस्टैंड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वी अंडरस्टैंड द प्रेजेंस ऑफ आवर आत्मन व्हेन द माइंड बिकम्स क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। जैसे लैंटर्न श्री रामकृष्ण देव कहते थे, एग्जाम्पल देते थे, लैंटर्न जब जलाते हैं आप अंदर, तो वो जो लाइट रहता है, प्रदीप जो रहता है, फ्लेम जो रहता है, वी आर नॉट एबल टू सी इट बिकॉज द सूट है, तो ब्लैक हो गया है, बहुत साल उसको साफ नहीं किया। तो जितना जितना साफ करते रहते हैं तो ग्लास जितना क्लियर हो जाता है, तो अंदर का जो ज्योति है तो निकलता है, लाइट निकलता है बाहर। तो इसलिए तो रामकृष्ण देव कहते हैं, तो मन जब साफ हो जाता है, मन जब शुद्ध होता है, तो अंदर का जो प्रकाश, आत्मन का जो प्रकाश, तो स्वयं प्रकाश है वो खुद आ जाता है बाहर। इससे जीवन फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी यहाँ तक 75th वर्ष तक वी हैव स्टडीड। तो अभी नेक्स्ट क्लास में फिर सामने जाएंगे, विल प्रोसीड नेक्स्ट टाइम। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।